জম্মু কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা প্রত্যাহারের যে সিদ্ধান্ত অসাংবিধানিক নয়, এই রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। আর রাতেই জম্মু কাশ্মীর সংক্রান্ত বিল নিয়ে রাজ্যসভাতে আলোচনায় অংশ নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বিরোধীদের কটাক্ষ। এত কিছুর পরেও বিরোধীরা বলছেন ৩৭০ অনুচ্ছেদ রদ অনুচিত। এরা আসলে পরাজয়ের মধ্যে নিজেদের জয় খুঁজে পান। তিনি হলে তো একবার সংসদেই আসতেন না। চিরাচিতভাবে কাশ্মীর সমস্যার জন্য দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে কাঠগড়ায় তুলেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। प्रयोग को सपोर्ट करना चाहता हूं। वो शब्द प्रयोग था नेहरूवियन ब्लंडर। नेहरू के समय में जो ब्लंडर हुआ था, इसके कारण कश्मीर को भुगतना पड़ा। मैं मान्यवर इस सदन में खड़ा रहकर आपके आसन के सामने जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि दो बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई। इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। एक ही गलती बताने से इतना तिल मिला गया। नहीं, मैंने हटा दिया। मैं तो सिर्फ नहीं ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ 2 ही बताना चाहता हूं। एक, पूरा कश्मीर जीते बगैर सीज फायर कर लिया, और दूसरा, यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती की। मान्यवर, मैं एक कोट अनकोट पढ़ना चाहता हूं। यूनाइटेड नेशन के अनुभवों के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वहां से कुछ संतोषजनक नतीजे की उम्मीद नहीं की जा सकती। मुझे यह एक अच्छा फैसला लगा, इनटू ब्रैकेट सीज फायर। मुझे यह एक अच्छा फैसला लगा, लेकिन इस मसले को ठीक से नहीं निपटा गया। हम सीज फायर और विचार करके कुछ बेहतर मार्ग निकाल सकते थे। বিরোধীরা কক্ষত্যাগ করায় আজ রাজ্যসভাতেও ধ্বনি ভোটে পাশ হয়ে যায় জম্মু কাশ্মীর সংশোধিত পুনর্গঠন বিল ও জম্মু কাশ্মীর সংরক্ষণ বিল। এরপর রাষ্ট্রপতি এতে সই করলেই যা আইনে পরিণত হবে। 2019 সালে জম্মু কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয় নরেন্দ্র মোদী সরকার। আজ জম্মু কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা প্রত্যাহার সংক্রান্ত মামলায় শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট নিজেদের রায় আগামী বছরের 30 সেপ্টেম্বরের মধ্যে জম্মু কাশ্মীরের নির্বাচন করানোর নির্দেশ দিয়েছে। বিশেষ মর্যাদা প্রত্যাহারের পরে কেটে গেছে 4 বছর। তাই লোকসভার মতোই রাজ্যসভাতেও আজ বিরোধীরা গোড়া থেকেই ওই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের জন্য দাবি তোলেন। প্রথমে সংসদ, তারপর রাষ্ট্রপতির সই ও শেষে সুপ্রিম কোর্টের কাছ থেকে স্বীকৃতি পাওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেস আজ দাবি করেছেন ৩৭০ অনুচ্ছেদ প্রত্যাহার সঠিক ছিল না। লোকসভাতে ওই বিল সংক্রান্ত আলোচনায় কাশ্মীর প্রশ্নে নেহরুর 2টি ভুল নিয়ে সরব হয়েছিলেন শাহ। আজকের বিতর্কেও ওই বিষয়গুলি তুলে ধরেন তিনি। পাশাপাশি তার অভিযোগ, নেহরু চলে কাশ্মীরে সেনা পাঠাতে দেরি হয়েছিল। শাহের মতে শেখ আব্দুল্লাহকে বিশেষ পদ পাইয়ে দেওয়ার জন্য ভারতের সঙ্গে কাশ্মীরের সংযুক্তিকরণ দেরিতে হয়। তিনি দাবি করেন জুনাগড়, হায়দ্রাবাদ, যোধপুর, লাক্ষাদ্বীপের মতন এলাকাগুলির সংযুক্তিকরণে বল্লভভাই প্যাটেল থাকায় কোনো সমস্যা হয়নি। নেহরু কেবল কাশ্মীরের দায়িত্বেই ছিলেন, সেখানেই সমস্যা তৈরি হয়েছে। নেহরু নীতির দিকে আঙুল তুলতেই আজ লোকসভায় ধাঁচে রাজ্যসভাতেও ওয়াকআউট করে কংগ্রেস সহ বিরোধী শিবির। ফলে বিরোধী শূন্য রাজ্যসভাতেও ধ্বনি ভোটে পাশ হয়ে যায় ওই 2টি বিল। এর মধ্যে জম্মু কাশ্মীর সংশোধিত পুনর্গঠন বিলে জম্মু কাশ্মীর বিধানসভার আসন সংখ্যা 83 থেকে বাড়িয়ে 90 করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পণ্ডিত নেহরুর প্রতি এই মন্তব্যের জবাবে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী কি বলেছেন, চলুন শুনে নেব। पंडित नेहरू ने मतलब अपनी लाइफ दे दी, लाइफ दे दी हिंदुस्तान के लिए। सालों जेल में रहे। अमित शाह जी को शायद हिस्ट्री नहीं मालूम, वो तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता हूं कि उनको हिस्ट्री मालूम। वो तो हिस्ट्री को रीराइट करते रहते हैं। ये पूरा का पूरा डिस्ट्रैक्ट करने का है। बेसिक इशू जाति जनगणना और जो भागीदारी है इस देश की, जो धन देश का है, वो किसके हाथों में जा रहा है, ये मेन इशू है। और इस इशू को ये लोग डिस्कस नहीं करना चाहते, इससे डरते हैं, इससे भागते हैं। मगर ये इशू को हम आगे ले जाएंगे और जो
गरीब लोगों का हक है वो हम उनको दिलवाएंगे, ठीक है। ये सब ये नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं नकारा। छत्तीसगढ़ के अंदर ट्राइबल दिया उन्होंने, ओबीसी आपको लगता है आप लोग मैंने सुनिए देखिए, हमारा भी ओबीसी था, इन्होंने ओबीसी दिया, ठीक है, वो इशू नहीं है। सवाल ये है कि स्ट्रक्चर के अंदर कितनी भागीदारी है। प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, मगर सरकार को 90 अफसर चलाते हैं। 90 अफसर में से 3 ओबीसी हैं और जो ओबीसी हैं उनका कोने में ऑफिस है। तो मेरा पॉइंट है कि सरकार का सिस्टम, हमारा इंस्टीट्यूशनल सिस्टम जो है पूरा का पूरा, उसमें ओबीसी की कितनी भागीदारी है, दलितों की कितनी भागीदारी है, आदिवासियों की कितनी भागीदारी है, ये हिंदुस्तान के सामने मेन सवाल है। और ये मुझे बोलने दीजिए आपसे सवाल पूछा तो बोलने दीजिए। हाँ, ये मेन इशू है। और 24 घंटा ये डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कभी जवाहरलाल नेहरू के बारे में बोलेंगे, कभी किसी और के बारे में बोलेंगे। बात ভাগিদারি কি থ্যাংক ইউ। এরই সাথে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পণ্ডিত নেহরুর প্রতি এই কটাক্ষকে জম্মু কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আব্দুল্লাহ কি চোখে দেখছেন তার কাছ থেকেই শুনে নেব। गलती थी और इसके ऊपर बात चल रही है किसकी बात चल रही है? कि नेहरू जी की गलती थी, उसको ठीक किया जा रहा है। पता नहीं नेहरू जी के खिलाफ इन लोगों को क्यों इतना वेनम है। नेहरू जिम्मेवार नहीं है। जब ये आर्टिकल आया था उस वक्त सरदार पटेल साहब थे यहाँ पे, नेहरू तो खुद अमेरिका में था, और कैबिनेट की जो मीटिंग हुई उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। उस वक्त इसका फैसला किया गया। आगे बोलिए। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके से, जिस सोच के साथ 370 हटाया गया था वो पूरा हो रहा है कश्मीर में? कश्मीरियत देखिए, वो 370 का जो मामला है वो बिगिनिंग से इनके हाथ में था। तो संघ है उसमें ये पहले से ही था कि हम इसको हटाएंगे। 70 साल लगे। आगे देखिए क्या होता है। तो भलाई हो रही है, कश्मीर का डेवलपमेंट हो रहा है। आप जाइए और देखिए। चुनाव होने चाहिए सर। क्यों नहीं होने चाहिए? हम तो चाहते हैं चुनाव। हम तो उम्मीद यही करते थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो 370 को हटाता है और साथ साथ इनसे ये भी कहे कि फौरन चुनाव कराओ। सुप्रीम कोर्ट ने तो उनको सितंबर तक वक्त दे दिया है। कमाल देखिए, क्या फायदा। स्टेटहुड का भी कहा तो फिर बात करेंगे, न्याय कहाँ है। सर, पीओके का जिक्र हो रहा है बार-बार, पीओके का जिक्र गृह मंत्री ने किया। क्या चाहिए पीओके को? क्या करना है? पीओके हमारा है, ले। को हमने तो कभी रोका नहीं। आप समर्थन करेंगे? समर्थन वतन की बात मैं नहीं करता, फैसला गवर्नमेंट ने करा। हम लोग क्या है, कुछ भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिग न्यूज।